Hello students, welcome to board paper practice session series for class 10th conducted by RN classes for board papers of 23-24. Now, हर एक chapter में we are discussing all the concepts and fundas and making their short notes. सबसे पहला काम short notes तैयार होने चाहिए because we are going through the revision of all the chapters. Second, हमने MCQs करने हैं, assertion reason करने हैं, as well as case studies करनी है because ये वाला part recently add हुआ है in board papers. तो दो एक साल हुए add हुए यार, right? And 2 marker, 3 marker, 5 marker which have been coming since 1998 से लेके अभी तक. You don't have to search all the previous year कि भाई ये वाला part course में है भी या नहीं. I'm going to do that for you. आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, but the most important ones, the most repeated ones will be given to you in this session itself. NCERT exemplar के क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं. बोर्ड के कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आप अटक सकते हो, जहां पे आपको कैलकुलेशन की जरूरत है. द बेस्ट मेथोडोलॉजीज वो डिस्कस करनी जरूरत है, so that आपके कम से कम टाइम में you get maximum marks, right? So we are starting with session number 3 on quadratic equations. Third session है. So session 1 में आपका main part हुआ था for first 20-25 minutes. We discussed all the fundas, concepts and made their short notes for the entire quadratic equations. Part 1 was done. साथ में I went through solving of quadratic equation. भाई जब हमने quadratic equation के short notes बना लिए, सबसे पहले सॉल्विंग तो सीखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कैसे, सॉल्व कैसे होगी, बनाई, सॉल्व करी, राइट? सॉल्विंग के मेथड्स करने हैं, सेशन 1 में जाओ. सेशन 2 विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो आप सबको जरूरत थी, दैट वाज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स. वर्ड प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस किया है, सारे बोर्ड पेपर के क्वेश्चंस उठाए एंड उसके अंदर पहले फॉर्मुलेशन. पढ़ोगे कैसे क्वेश्चन को, अंडरलाइन क्या करोगे, गिवन क्या लिखोगे, टू बी फाउंड क्या लिखोगे, एंड फिर सोचोगे कि भाई इक्वेशन कैसे बनेगी. वंस द इक्वेशन इज फॉर्मुलेटेड, देन वी विल वर्क ऑन द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दैट इक्वेशन टू गेट द फाइनल आंसर. होगी वर्ड प्रॉब्लम्स. एंड सेशन 3 की क्यों जरूरत थी, अभी रह गए थे हमारे पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एमसीक्यूज यहां पे पेंडिंग थे. सो आई कवर्ड एमसीक्यूज ओवर हियर एंड अदर क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस कभी बहुत पहले, कभी 2 फॉल्स में आया या कभी 4 मार्कर में आया. ऐसे क्वेश्चंस वर स्टिल पेंडिंग. आई थॉट कि इसको भी कवर कर देना चाहिए हमें कुछ और क्वेश्चंस के फॉर्म में इन योर सेशन नंबर 3, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिस पार्ट ऑफ दिस सेशन. Welcome students to the practice part of session number 3 on quadratic equations. So, अब practice करनी है. MCQs are there, 2 markers, 3 markers and 5 markers as you can see on the screen, right? So, अब हम practice करेंगे for all 25 questions. Let's start. MCQ से शुरू कर रहे हैं. The first question is from Ryan International School which came in their pre-board in 22-23. Which of the following is not a quadratic equation? Not की बात करिए, quadratic equation नहीं हो सकता. So we have to go with all the options. 2 times x minus 1 का whole square is x square minus 2x plus 1 is equal to 4x square minus 2x plus 1, right? So now this is 2x square minus 4x plus 2 is equal to 4x square minus 2x plus 1, right? So this goes on left hand side, minus 2x square. This also goes on left hand side, minus 2x. And this goes on left hand side, plus 1 equal to 0. Now tell me, is it a quadratic equation? Absolutely yes, it is a quadratic equation. So I cannot take this as not a quadratic equation. B part, 2x minus x square. अब ये x square को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा. सेम गोज विद दिस 5. सो माइनस 2x square प्लस 2x minus 5 is equal to 0. Is it a quadratic equation? Yes, so I cannot take this as well. We'll go with the C part.
root 2x plus root 3 whole square plus x square is equal to 3x square minus 5x. So अगर इसका स्क्वायर करना है that is 2x square plus 3 plus 2 times root x into root 3 plus x square is equal to 3x square minus 5x. Right? So this is 2x square plus 3, and this will become 2 times plus 2 times root 6x plus x square minus 3x square minus का plus हो जाएगा 5x is equal to 0. This comes on this side and this also comes on this side, right? So 2x square plus x square minus 3x square, this goes off. So यहाँ पे x की वैल्यू है 2 root 6 plus 5x plus 3 is equal to 0. Now tell me, is it a quadratic equation? No, absolutely not. यहाँ पे x की power आ रही है 1. So C part is the right option. We'll do the D part as well so that you can check. So x square plus 2x का whole square हो रहा है यहाँ पे. So x raised to the power 4 plus 4x square plus 2 times 2 2s are 4 हो जाएगा. So 4 x square into x, that is x cube, which is equal to x raised to the power 4 plus 3 plus 4x cube. Right? So x raised to the power 4, x raised to the power 4, this goes off. 4x cube, this goes off. 3 को मैं इधर ले आता हूं. 4x square minus 3 is equal to 0. x की पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है यार. बाकी कुछ कांस्टेंट ही टर्म है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ना. Yes, this is a quadratic equation, so C part is the right choice. Question number 2. If a quadratic equation has real and equal roots, real and equal roots means आपका simple है real and equal के लिए आप क्या choose करोगे? Discriminant as 0, equal roots है, right? So D is equal to 0 means B square minus 4AC is equal to 0. Right? So B यहाँ पे क्या है? That is 4. 4 का square minus 4. A कितना है? 1. C कितना है? K is equal to 0. So this becomes 16 minus 4K, which is equal to 0. So 4 can be taken out as common. 4 minus K is equal to 0. So 4 minus K is 0 because मैं अगर यहाँ से 4 को नीचे ले जाऊं, it is of no use actually. 0 ही रहेगा. So K की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? That is 4. Quite straightforward. Answer is C part. Right? Next one. Question number 3. The roots of this equation is. Roots निकालने हैं. And DPS का question है from 22-23. Right? Roots निकालने हैं इस equation के. Let's see the equation. 3x square plus 5 root 5x plus 10 equal to 0. What is the best method? The best method is splitting the middle term. Two numbers का sum, it is 5 root 5, and the same two numbers which when multiplied will give you 3 tens are 30. Cool. So अब बताओ, दो numbers का sum root 5 होना चाहिए, 5 root 5 होना चाहिए, तो मतलब कि root 5 तो इसमें आना ही आना है, right? So यहाँ पे भी root 5 तो आएगा ही आएगा, दोनों में. So root 5 into root 5, 5 is already there. Now you have to make it as 6. So क्या बनाऊं? 2 root 5, 3 root 5. 3 2 is 6, 5 into 5. तो 5 आ जाएगा, 6 5 is 30 हो जाएगा. So this is true. यहाँ पे भी 2 root 5, यहाँ पे 3 root 5. 2 root 5 plus 3 root 5 is 5 root 5. So 3x square, 5 root 5 को मैंने तोड़ दिया 2 root 5 times x and 3 root 5 times x plus 10 is equal to 0. Right? X is taken out as common. 3x plus 2 root 5. यहां पे कॉमन क्या आएगा? मेरे को तो सिर्फ रूट 5 कॉमन दिख रहा है, राइट? रूट 5 कैन बी टेकन आउट एज कॉमन. यहां पे बच गया 3x प्लस यहां पे 2 into 5 है. 10 कैसे बनता है? 2 into 5 से. उसमें से रूट 5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 2 root 5 ही तो बचा, which is equal to 0. So 3x plus 2 root 5 is taken out as common from the two terms. And यहां पे बच गया x और यहां पे बच गया root 5, which is equal to 0. So either 3x plus 2 root 5
is equal to 0 or x plus root 5 is equal to 0. So x की वैल्यू या तो माइनस रूट 5 होगी या x की वैल्यू क्या होगी -2√5 बाय 3. ठीक है, सो -√5 और -2√5 बाय 3 आंसर इज सी पार्ट. दिखना चाहिए, बिल्कुल सीधा आ रहा है, राइट. क्वेश्चन नंबर 4. This is from Manav Rachna School 22-23 pre-board question, right? Done. So, x square plus 1 का whole square minus x square is equal to 0 has how many roots? ठीक है, 4 roots, 2 roots, no root, 1 real root. I have to check it out. Let's check. So देखो, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ये क्या बन रहा है? a square minus b square. So, यहां पे मैंने इसको ले लिया a, इसको ले लिया b. So, a square minus b square क्या होगा? a plus b, that is x square plus 1 plus x and x square plus 1 minus x, which is equal to 0. Right? Either x square plus x plus 1 is equal to 0 or x square minus x plus 1 is equal to 0. Right? अब this or this, दोनों में से एक भी 0 हो जाएगा, my problem is sorted. So, now you have to solve these. ठीक है? So, ये quadratic equation बनी, splitting तो हो नहीं सकती. So, my only chance is using the quadratic formula. X कैसे आएगा? Minus b plus minus under root of b square minus 4ac by 2a. ठीक है? So, यहां से b मुझे मिला -1 plus minus. What about b square? b is 1 minus 4. a की वैल्यू यहां से मिली, that is nothing but 1, and c की वैल्यू मुझे यहां से मिली, that is nothing but 1 by 2a, 2 into 1, right? Cool. So x is equal to -1 plus minus. अब बोलो, under root of 1 minus 4, that is -3. Under root of -3. Can you tell me under root of -3 क्या होता है? No. So this has no real roots. कोई नहीं, इस पार्ट से नो रियल रूट्स आ रहे हैं, तो अब मैं दूसरे वाले से चेक कर लेता हूं. x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्या पता वहां से आ जाए. सो अगेन आई विल यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. सो x इज इक्वल टू -b माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, दैट इज 1. सॉरी, -1 का स्क्वायर ही लिखेंगे, -4 into a into c by 2a 2 into 1, right? So x is equal to minus into minus plus 1 plus minus under root of, यहां पे क्या आएगा? -1 का स्क्वायर, that is 1 minus 4 by 2 into 1, so 2 ही रह जाएगा यहां पे. So x is equal to 1 plus minus under root of -3 by 2. अब बोलो, क्या मैं फिर से रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर निकाल सकता हूं? नो. यहां से भी आंसर क्या आएगा? नो रियल रूट्स. नो रियल रूट्स, यहां से भी आंसर, नो रियल रूट्स, यहां से भी आंसर. आंसर इज सी पार्ट. कूल. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5. अ स्टूडेंट इज ट्राइंग टू फाइंड रूट्स 3x square minus 10x minus 8 is equal to 0 by splitting the middle term. मैं स्प्लिट कर रहा हूं मिडिल टर्म्स को as follows. सो मैं स्प्लिट करके, मेरे को फर्स्ट स्टेप ये दिया हुआ है, सेकंड स्टेप मुझे ये दिया हुआ है, राइट? सो मेरे को m और n की वैल्यू निकालनी है, मींस मेरे को नंबर्स निकालने हैं, मेरे को फाइनल आंसर नहीं चाहिए, मेरे को स्प्लिटिंग करने के बाद रूट्स नहीं चाहिए. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. इन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना है, सेकंड स्टेप पे मेरे को m और n की वैल्यूज चाहिए, दैट्स इट. ठीक है? अब ये स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और इसमें गलती हो जाती है, जबकि है कुछ भी नहीं और आप ये रेगुलरली यूज भी करते हो. 3x square minus 10x minus 8. Now, which is equal to 0, I have to put the numbers. Two numbers, their sum is -10 and the two numbers, their product is -24. ठीक है? कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे? कौन से ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं? 10 भी बना दे और 8. 3 is 24. नहीं यार, वो तो नहीं बना. 6 4 is 24, right? I can use 6 and 4. I can use 6 and 4.
क्या मैं 6 and 4 यहां पे यूज कर सकता हूं? बट 6 के साथ यूज किया, 10 तो बन गया, 24 भी बन गया, क्या यहां पे नेगेटिव आएगा? एब्सोल्युटली नॉट। ये गलती होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि दोनों बन रहे थे इस केस में। मैंने जानबूझ के यहां पे दिखाया कि दोनों बनने के बाद भी आपको चेक करने पड़ेंगे साइंस। दिस इज -10 एंड प्रोडक्ट इज -24। कौन से ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं भाई? उससे नहीं चलेगा तो 2 and 12 से चला लेते हैं। 2 into 12 that is 24 of course, and 2 into 12 ना 2 plus 12 सब्ट्रैक्ट करके 10 आ सकता है, तो -12 अगर मैं लिख लूं, my problem is sorted, right? so यहां से -10 भी बन जाएगा और -24 भी बन जाएगा। so मैं इसको कैसे लिखूंगा? 3x square minus 12x plus 2x minus 8 is equal to 0। सो m की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 12। n की वैल्यू मेरे पास क्या आई? 2। ओके, m is 12 and n is 2। Cool. C part is the right choice। कितना सीधा था क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन नंबर 6। If the sum and the product of roots of this equation are equal, okay, sum and the product of roots, मतलब कि sum of roots and product of roots पे जाना पड़ेगा। मतलब कि मेरे को किस पे जाना है? अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, राइट? सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई क्या मेरे पास? -b, मतलब कि -6/a। कूल। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी यहां पे? c/a, राइट? सो अल्फा इंटू बीटा, c is a constant term, right? That is 4a/a। This goes off। उसने क्या बोला? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर इक्वल, मतलब कि -6/a इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। सो मैं क्रॉस कर देता हूं, a ऊपर चला गया, -6/4 यहां आ गया, दिस इज 3, दिस इज 2। a की वैल्यू क्या आ गई? -3/2 is -3/2, that is B part, Bombay। Cool। Number 7, if x is equal to 0.3 is root of this equation, then k is equal to, this is from board paper 22-23। x की वैल्यू मुझे ये दे दी है, ओके, k की वैल्यू मुझे निकालनी है। if this is the root of this equation, this must satisfy। so 0.3 का स्क्वायर minus 0.9 into k is equal to 0। so मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 3/10, क्योंकि इसमें मेरे को पता है डेसिमल की गलती हो जाती है, नथिंग एल्स। और मैं इसको भी चेंज कर लेता हूं, 9/10 लिख लेता हूं, so that I don't make any mistake। this becomes 9/100 minus 9/10 k is equal to 0, minus 9/10 k, और यहां पे चला गया -9/100। I switched it off over here, 100 बनाना पड़ेगा। this goes off, 9 से गया, ये यहां से गया, k की वैल्यू क्या आ गई? 1/10। क्या यहां पे 1/10 आंसर है? नो, बट यहां पे 0.1 आंसर जरूर है। दैट इज अगेन अ सी पार्ट। कूल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स हैं ये। सो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं जिसके रूट्स हो अल्फा एंड बीटा। कैसी होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ऐसी ही होती है। सो मेरे पास अब अल्फा अगर ये आ गया 3 माइनस रूट टू एंड बीटा मेरे पास आ गया 3 प्लस रूट टू, प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। अब देखो इतना बेसिक क्वेश्चन भी आ जाता है बोर्ड पेपर में, बोर्ड पेपर 22-23 का क्वेश्चन है अब। सो x माइनस 3 माइनस रूट टू, कभी भी नेवर बी इन अ हरी, बोर्ड पेपर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है एंड आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, नॉट एन इश्यू, राइट? सो यहां पे आएगा x माइनस 3 प्लस रूट टू, राइट? और यहां पे आ जाएगा x माइनस 3 माइनस रूट टू, राइट? क्या अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूं? और इज दिस द बेटर वे टू राइट द आंसर? नो, मेरे पास अल्फा एंड बीटा दोनों हैं, आई कैन राइट दिस आंसर फ्रॉम हेयर, बट क्यों यूज करूं मैं ये? मेरे पास बेटर मेथड नहीं है। आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा, ज्यादा जल्दी आंसर आएगा। 3 माइनस रूट टू प्लस 3 प्लस रूट टू, देखो
यहां से मैं आंसर निकाल लूंगा, क्यों? क्योंकि अब मेरे को पहले x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर √2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करूं? मैं सिंपल लिखता हूं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा? 3 माइनस √2 इंटू 3 प्लस √2। कूल। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? दैट इज नथिंग बट 6। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 3 स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 2, दैट इज 7। सो मैं इक्वेशन कैसे लिखता हूं? एक्स स्क्वायर माइनस sum of roots into x plus product of roots equal to 0. This is how I write a quadratic equation with the roots given, x square minus 6x plus 7 which is equal to 0. देखो वहां पे अभी मेरे को पहले ये लिखो फिर आंसर करो, इसमें तो आंसर आ भी गया। Always use the better method to get the answer. Answer is a part. Cool. यहां पे मैंने करके दिखाया कि इसमें क्या दिक्कत आ सकती है। आप ऐसे करो ना सीधा का सीधा। Why don't you do it like this? Right? Next. Question number 9. What is or are roots of this equation? Only 2, only 3, 0 and 6 and 0 and 2. This is from sample paper which is provided this year. इस साल के sample paper का है। Already it is given. ठीक है? अब कुछ बच्चे पता क्या करेंगे? वो करेंगे 3x square इज इक्वल टू 6x। अब हम पता क्या करेंगे? x से x काट देते हैं, 3 2 से काट देते हैं, x2 आ गया, भाई एक ही होगा ओनली 2 कैन बी द आंसर। अब दिस इज नॉट द राइट वे टू डू। इसको सॉल्व करने का आंसर क्या होगा? 3x स्क्वायर अगर 6x के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले इसको इधर लेकर आओ। 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। राइट नाउ कॉमन 3x को कॉमन लिया, x माइनस 2। कितने सारे क्वेश्चंस में मैं सिंपल काटता नहीं हूं, कॉमन निकालता हूं टू गेट द आंसर। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप काट रहे हो तो आप रूट को कंसिडर ही नहीं कर रहे। अब इसके अंदर पता क्या है? आइदर x इज 0 और x माइनस 2 इज 0। सो x minus 2 means x can also be 0. So it can have two roots, 0 and 2. D part is the right choice, not the A1. यहां पे आप मिस कर दोगे अगर आप कटिंग करोगे कि भाई एक रूट मिस तो नहीं कर दिया मैंने वहां पे। यहां पे आपका रूट मिस नहीं होगा, हमेशा ऐसे ही करोगे। मेक अ स्टार ओवर हेयर, नहीं तो गलती कंटिन्यूड रहेगी। ध्यान से। सो क्वेश्चन नंबर 10. A teacher asks 3 students to complete the following statement about the nature of roots of a quadratic equation. Nature of roots की बात करिए, ठीक है। सो ये है फ्रॉम सैंपल पेपर 22-23, पिछले साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। इफ क्यू स्क्वायर माइनस 4pr इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, सो क्यू स्क्वायर माइनस 4pr मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 मींस मैं सीधा कह सकता हूं d इज ग्रेटर देन 0। The roots of the quadratic equation, ये जो मेरे roots हैं इसके, will be always positive. जैन ने बोला कि भी always positive होंगे। यार हमें तो सिर्फ एक ही चीज दी है ना, d is greater than 0। इससे मैं क्या कह सकता हूं रूट्स के बारे में? रियल एंड डिस्टिंक्ट, सिर्फ यही बोल सकता हूं, और तो कुछ बोल ही नहीं सकता। क्या मैं कह सकता हूं वो ऑलवेज पॉजिटिव होंगे? नहीं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बोथ इज पॉसिबिलिटी। जैन का आंसर तो जी गलत है। विपुल आंसर करता है कि भाई पॉजिटिव होंगे रूट्स अगर पी क्यू आर पॉजिटिव हुए। ओके। सुमन शी सेज भाई नेगेटिव होंगे रूट्स अगर पी क्यू आर पॉजिटिव हुए तो। सो मतलब कि बेसिक सिंपल सी चीज है कि भाई मेरे को पी को पॉजिटिव लेना है, क्यू को भी पॉजिटिव लेना है और आर को भी पॉजिटिव लेना है। उसके बाद हम रूट्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट मी टेक रूट्स एज अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अल्फा एंड बीटा एज रूट्स मैंने ले लिए, ठीक है, ये मैंने सामने लिख लेता हूं रूट्स हैं, ठीक है। सो मैं जाऊंगा रिलेशनशिप पे, अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा? माइनस क्यू बाय पी। एंड अल्फा इंटू बीटा कैसे आएगा? आर बाय पी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस क्यू बाय पी एंड अल्फा इंटू बीटा इज आर बाय पी। मेरे को एक बात बताओ, क्यू इज पॉजिटिव, पी इज पॉजिटिव, तो अल्फा प्लस बीटा यहां से क्या आ जाएगा? बिकॉज बाहर एक नेगेटिव दिया हुआ है, दिस इज नेगेटिव। कूल। और दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो मैं अल्फा एंड बीटा के बारे में क्या बोल सकता हूं? अल्फा इंटू बीटा विल बी
पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव. सो यहां से मैं अल्फा और बीटा के बारे में क्या कह सकता हूं? केस 1, अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज पॉजिटिव, बीटा इज पॉजिटिव. क्या ये रहेगा केस? एब्सोल्युटली रहेगा ही रहेगा. व्हाट अबाउट केस नंबर 2? अल्फा कैन बी नेगेटिव, बीटा कैन ऑल्सो बी नेगेटिव. ठीक है, अब देखो मैं यहां पे केस 1 लगाने की कोशिश करता हूं. दिस इज अ पॉजिटिव, ठीक है, एंड इसके बाद अल्फा इज पॉजिटिव, बीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव. आंसर मेरा क्या आना चाहिए? नेगेटिव. क्या ये हो सकता है? एब्सोल्युटली नॉट. अल्फा की जगह मैंने नेगेटिव रखा, नेगेटिव नंबर. बीटा की जगह भी मैंने नेगेटिव नंबर रखा. क्या आंसर नेगेटिव नंबर आ सकता है? यस. तो केस 2 हो सकता है जिसके अल्फा और बीटा दोनों क्या हो? नेगेटिव. तो सुमन का आंसर इज करेक्ट. आंसर इज सी पार्ट. मेरे ख्याल से 2 स्टार लग जाने चाहिए इस पे तो. ठीक है, सोच के समझ के फंडा पे क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. बट फंडा सोचना है इसके अंदर. अगर फंडा आपका करेक्ट है तो ही ये क्वेश्चन ठीक होगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा. सो इट हैज टू बी डन फॉर द राइट रीजंस. ठीक है, चेकिंग करनी बहुत जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये आया था दिल्ली 2013 में. दिल्ली मींस बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोर्ड लिखना भूल गए. दिल्ली पेपर का क्वेश्चन है इन फ्रॉम 2013. Solve the following quadratic equation for x. Okay. ये क्या आया? 4 root 3 x square plus 5x minus 2 root 3. ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूं इसको. ठीक है, इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करना है. कूल. सो क्या करना चाहिए मुझे? द बेस्ट पार्ट इज यू कैन गो विद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. इजीएस्ट थिंग. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों लगाऊं रूट्स के साथ? ठीक है, सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, two numbers का sum is 5 and two numbers की product is 4 2s are 8, 8 3s are 24 and that too minus 24. The numbers are 8 and 3, 8 and 3. दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए. The smaller one has to be negative क्योंकि sum is positive. So 4 root 3 x square, it's a 2 marker question, पूरा लिखना पड़ेगा, plus 8x minus 3x minus 2 root 3 is equal to 0. ठीक है, सो 4 is taken out to be common. ठीक है, 4 कॉमन आ गया तो यहां पे क्या बच गया? 4x कॉमन ले लेता हूं. रूट 3x प्लस 2 माइनस, यहां से भी मैंने रूट 3 कॉमन ले लिया. सो क्या बचा मेरे पास? रूट 3x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0. सो रूट 3x प्लस 2 और यहां पे आ गया 4x minus root 3 which is equal to 0. So root 3x plus 2 is equal to 0 or 4x minus root 3 is equal to 0. So x की वैल्यू क्या आ जाएगी? minus 2 by root 3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? root 3 by 4. That's it. This is your first answer, this is your second answer and full 2 marks in your bag. Quite straightforward question from board paper. Next, अब ये थोड़ा सा सोच के करने वाला था. 2016 में बोर्ड पेपर मतलब कि जो अब्रॉड आता है पेपर फॉरेन 2016 उसका क्वेश्चन है. सॉल्व फॉर x इन टर्म्स ऑफ a एंड b. a बाय x माइनस b प्लस b बाय x माइनस a इज इक्वल टू 2. अब इसको उठाना है हमने. ठीक है, सो इसकी सॉल्विंग के लिए I'll write it from here so that हम पूरा एक ही पेज पे कर लें. x माइनस b प्लस b बाय x माइनस a इज इक्वल टू 2. मैं तुमसे पूछ के ही करूंगा. बोलो भाई क्या करना चाहिए मुझे? मेरे ख्याल से सबके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हम लोग एलसीएम ले लेते हैं. x माइनस b इंटू x माइनस a. सो यहां पे आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस a प्लस b इंटू एक्स माइनस b इज इक्वल टू 2. ये क्या बन गया? यहां से यहां ax माइनस a स्क्वायर प्लस bx माइनस b स्क्वायर 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab. ठीक है, सो मेरे ख्याल से द स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग वुड बी, अभी तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा अंदर टूवर्ड्स इनसाइड. ठीक है, सो यहां पे आ जाएगा ax प्लस bx minus a square minus b square which is nothing but 2x square
plus 2ab minus 2ax minus 2bx. So everything should come towards right hand side so that it becomes positive. 2x square, अब ये x इधर आया माइनस 3ax, ये भी इधर आया माइनस 3bx, ये पॉजिटिव ही रहेगा, सो 2ab, a स्क्वायर इधर, b स्क्वायर इधर, ठीक है। सो अब मैं इसको 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x कॉमन ले लेता हूं a प्लस बी, प्लस यहां पे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको लिख लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये चीज मैंने जानबूझ के करी क्योंकि मेरे को दिख रहा था a प्लस बी बन सकता है, तभी तो मैंने यहां पे कॉमन लिया। अब देखो क्या कॉमन का कुछ फायदा हो रहा है? नहीं, कॉमन का तो कुछ फायदा नहीं हो रहा। सो क्या करना चाहिए मुझे फिर? क्या करें? एक काम करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं पहले इसको ठीक करके लिखता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 3x a प्लस बी प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। मेरे पास सॉल्व इन टर्म्स ऑफ x है, मींस x की फॉर्म में आंसर आना है, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है। यहां पे x स्क्वायर, यहां पे x, तो यहां पे x रेस पार 0 होगा, ठीक है। दो नंबर्स जिनका सम आना चाहिए -3 टाइम्स a प्लस बी, और दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि मुझे एक चीज तो क्लियर हो गई, यहां पे a प्लस बी होना चाहिए, यहां पे भी a प्लस बी होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं a प्लस बी को, सपोज करो मैं a प्लस बी को चॉकलेट्स लेता हूं, मेरे को 3 चॉकलेट्स चाहिए, तो 2 चॉकलेट्स प्लस 3 चॉकलेट्स तभी तो आंसर आएगा, नहीं? तभी आंसर बनना चाहिए, राइट? सो 2 चॉकलेट्स यहां पे, 1 चॉकलेट यहां पे, और ये ऑफ कोर्स 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होना था, तो ये 2 आना ही चाहिए था, राइट? सो मैंने यहां पे लिख लिया 2 टाइम्स ए प्लस बी एंड 1 टाइम्स ए प्लस बी, दोनों का प्रोडक्ट किया, 2 टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरा बन रहा है। अब यहां पे देखो नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब कि दोनों नेगेटिव होने चाहिए, यहां पे भी नेगेटिव, ठीक है। सो 2x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 टाइम a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट? सो मैंने यहां से कॉमन लेना है, 2x इज कॉमन, x माइनस a प्लस बी माइनस, अब यहां से a प्लस बी कॉमन, x माइनस कॉमन लिया तो यहां पे माइनस ही बचा, a प्लस बी ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। सो x माइनस a प्लस बी ये आ गया, और यहां पे आ गया 2x माइनस a प्लस बी विच इज इक्वल टू 0। सो x माइनस a प्लस बी इज 0 और 2x माइनस a प्लस बी इज 0। सो क्या करा जाए, x की वैल्यू a प्लस बी हो सकती है और x की वैल्यू माइनस उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, a प्लस बी बाय 2 हो सकती है। दैट्स इट। x की वैल्यू a प्लस बी हो सकती है, x की वैल्यू a प्लस बी बाय 2 भी हो सकती है। दिस इज योर आंसर। अब ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर का आया हुआ, इतना इन डिटेल लिखोगे तब जाके नंबर मिलेंगे। सर्कल इट। अगर ये गलती हुई, कहां हुई गलती, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी, यही एक मेजर क्वेश्चन था इसके अंदर जो निकलना चाहिए था, राइट? नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13। इफ रितु वर यंगर 5 years than she really is, then square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. Find her present age. ठीक है, टर्म 2 21 22, उस 21 22 वाला जो पेपर हुआ था उसके अंदर टर्म 1 एंड टर्म 2 हुआ था, तो टर्म 2 का पेपर है बोर्ड का, राइट? सो अब सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा, रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। लेट
The age of Ritu is equal to X years. ठीक है, इसके बाद उसने बोला रितु वर यंगर बाय 5 years. सो यंगर बाय 5 years मतलब कि अगर वो 5 साल छोटी होती, सो यंगर बाय 5 years, Ritu's age, I'm so sorry, age would be, क्या होती है उसकी एज? x माइनस 5 years. जो उसने बोला वो मैंने किया, ठीक है. सो यहां पे मैंने assumption करी, देन स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन, मतलब कि देन कॉमन लिया है, देन मतलब कि x माइनस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हर एज would have been 11 more, 11 ऐड करना है किस में? 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज. प्रेजेंट एज कितनी है? x. ठीक है, सो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बन चुकी है. नाउ दिस इक्वेशन हैज टू बी सॉल्व, दैट्स इट. यहां पे हम लोग सिर्फ फॉर्मुलेशन कर रहे थे, जस्ट द फॉर्मुलेशन, राइट. अब इसको कर लेते हैं, x माइनस 5 का होल स्क्वायर which is equal to 5x plus 11. तो यहां पे आ गया x स्क्वायर माइनस 5 2 ज़ 10x प्लस 5 5 ज़ 25, यहां पे आ गया 5x प्लस 11. सो ये 5x इधर गया, ये 11 भी इधर गया. x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 माइनस 11 दैट इज 14 which is equal to 0. दो नंबर्स का सम that is minus 15. दो नंबर्स का प्रोडक्ट that is 14. राइट, अब बोलो कैसे दो नंबर्स होंगे? 14 and 1, 14 and 1. So x square minus 14x plus x, ठीक है, प्लस x प्लस 14 is equal to 0. राइट, दोनों नेगेटिव, सॉरी दोनों नेगेटिव होने चाहिए, आई एम सो सॉरी गाइस. सो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, तभी गड़बड़ हो रही थी. सो x कॉमन, x माइनस 14, माइनस 1 कॉमन, x माइनस 14 विच इज इक्वल टू 0. x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. राइट, सो आइदर x माइनस 14 इज 0 और बीच में लगाना पड़ेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. कूल. सो x की वैल्यू क्या आ सकती है? या तो 14 आ सकती है, या x की वैल्यू क्या आ सकती है? 1. 5 years यंगर बोला था, माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ सकती है? नो. तो यहां पे देना पड़ेगा रिजेक्टेड. इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है. सो x इज 14, तो एज ऑफ ऋतु is equal to 14 years. That's it. इतना ही क्वेश्चन है. Next one. Question number 14. Find the value of m so that the quadratic equation, ये रही हमारी जो quadratic equation, has two equal roots. Roots are equal. मतलब कि उसने बात, देखो मेरे मन में चल रहा है, roots are equal means d is equal to 0. इतना सही क्वेश्चन है. Right? So this is from सैंपल पेपर T2, मतलब कि टर्म 2 का जो सैंपल पेपर आया था 21-22. कूल. सो मेरे पास mx 5x minus 6 plus 9 equal to 0. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिख तो नहीं रही, मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दिखेगी. सो यहां पे आ जाएगा 5mx square minus 6mx plus 9 is equal to 0. Now, उसने बोला रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स आर इक्वल के लिए द इजीएस्ट थिंग इज d is equal to 0. यही कंडीशन मींस b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0. सो सब कुछ देना पड़ेगा. a इज 5m, b की वैल्यू है -6m और c की वैल्यू है 9. सो
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसका यूज करूंगा मैं फिर से, यहां पे लिख लेता हूं सो दैट देयर इज नो मिस्टेक डन. b is minus 6m का square minus 4, a is 5m, c is 9 which is equal to 0, minus 6 का square that is 36m square minus 5 4s are 20 and ये आ गया minus 180m which is equal to 0. ठीक है, इतना ही है. सो क्या कॉमन आएगा? 36m कैन बी टेकन आउट एज कॉमन. m माइनस 5 यहां पे लिखना पड़ेगा इक्वल टू 0. आइदर m इज 0 और m माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो m इज 0 और m इज इक्वल टू 5. सो अब मेरे को बताओ, अगर मैं m को 0 ले लूं, ठीक है, तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी? नॉट फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए रिजेक्ट किया. नॉट फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो m की वैल्यू क्या आएगी? 1, 5. दैट्स इट. राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम. ठीक है, सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स की बात करी, फिर उसने बोला कि भाई नेचर ऑफ रूट्स के बाद आपने बताना है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट्स और नॉट. ठीक है, फाइंड देम, इसकी बात करी. बोर्ड पेपर 2012 का क्वेश्चन है. सबसे पहला काम है नेचर ऑफ रूट्स निकालना. ठीक है, सो मेरे पास आया 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. मेरे पास बात किसकी करी? नेचर ऑफ रूट्स की. तो मतलब कि मैंने डी की बात करनी है, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, सो d इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है? माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4. सो 16 इंटू 3 दैट इज 48 और यहां पे भी आ गया आपके पास 48. d इज इक्वल टू 0. सो नेचर ऑफ रूट्स क्या आ गई? इक्वल रूट्स. दैट्स इट. बट इफ रूट्स एग्जिस्ट, यस रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम. अब मैं इसके रूट्स निकाल लेता हूं. 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 x प्लस 4 इक्वल टू 0. मेरे को d 0 मिल चुका है. व्हाट शुड आई डू? क्या मुझे स्प्लिटिंग लगानी चाहिए या क्वाड्रेटिक? बेस्ट पार्ट है क्वाड्रेटिक लगाओ ना. माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज d बाय 2a. अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. x इज इक्वल टू माइनस b मतलब कि माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3 बाय 2, a की जगह आ गया मेरे पास 3. x इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4 रूट 3 बाय 2 इंटू 3. 2 2 4 आ गया. सो आंसर इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 2 रूट 3 बाय 3 एंड दूसरा आंसर इज 2 रूट 3 बाय 3. ठीक है, इक्वल रूट्स की बात करी थी तो इक्वल रूट्स आ गए. ठीक है, ये निकालना जरूरी था. पहले नेचर ऑफ रूट से ही आंसर करना था, पर बाद में जब नेचर ऑफ रूट से आंसर कर दिया तो मैं बार बार इसको क्यों करूं? मैं तो सीधा लिख दूंगा ना आंसर. मैं स्प्लिटिंग क्यों लगाऊं? यहां पे हर बारी हम स्प्लिटिंग करते हैं. स्प्लिटिंग नॉट रिक्वायर्ड थी. ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज फ्रॉम बोर्ड पेपर 2012. तो रूट्स निकालने हैं. पहले मैं इसको साइड पे लिख लेता हूं. ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो द बेस्ट पार्ट इज, कभी भी मेरे को रूट्स निकालने हैं तो मैं स्प्लिटिंग करता हूं. स्प्लिट ऑलरेडी दिया हुआ है, मेरे पास 4 टर्म्स हैं. कॉमन लो ना फर्स्ट 2 में से. बी स्क्वायर एक्स इज टेकन आउट एज कॉमन. क्या बचा? ए स्क्वायर एक्स प्लस 1. यहां से माइनस 1 कॉमन दिख गया मेरे को. ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0. सो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 और यहां पे आ गया बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो यहां से मैं क्या लिखूंगा? x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय ए स्क्वायर
राइट, और x की वैल्यू यहां क्या आ गई, 1/b²। दैट्स इट। सो x की वैल्यू यहां से आई दिस, एंड यहां से x की वैल्यू आई दिस। दैट्स इट। इतना छोटा सा क्वेश्चन था यार, नंबर मिल गया हमें। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। This is from board paper 2016. This also came in foreign university. ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटी मींस अब्रॉड वाले सीबीएसई बोर्ड पेपर में आया था, तभी एआई लिखा हुआ है, राइट, 2016। अभी इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होनी चाहिए, तभी तो सॉल्व करेंगे। सो मेरे ख्याल से यू नो द फर्स्ट स्टेप, यू नो द फर्स्ट ड्रिल। सो एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस ए, x माइनस बी एंड x माइनस सी, राइट। मैंने x माइनस ए बी सी इसलिए बोला, x माइनस वन इंटू x माइनस टू इंटू x माइनस थ्री, ठीक है। सो यहां पे a एंड b दोनों थे, तो x माइनस थ्री मैंने सीधा लिख दिया। यहां पे b और c दोनों थे, तो मेरे को x माइनस वन मैंने पूरा लिख दिया। a और b ही सोच के मैं कर रहा हूं, सो दैट मेरी कैलकुलेशन में गलती ना हो, क्योंकि यहां पे x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस वन इंटू x माइनस टू इंटू x माइनस थ्री, ऐसे सोच के कर रहा हूं, मेरे दिमाग वैसे चल रहा है, राइट। इट बिकम्स इजियर, थॉट प्रोसेस वैसा होना चाहिए जिससे आपका काम आसान हो, मुश्किल ना हो। कूल। सो add it up in the numerator, x plus x that is 2x because सब कुछ प्लस ही है, minus 3 and minus 1 that is minus 4, ठीक है। So this is nothing but x minus 1, x minus 2 into x minus 3, which is 2 by 3. What should we do? 2 को कॉमन ले लो यार, न्यूमरेटर में क्या बच गया, x minus 2, यहां पे क्या रह गया, x minus 1, नेक्स्ट वाले में x minus 2, उसके नेक्स्ट x minus 3 is nothing but 2 by 3. So 2 यहां पे गया, x minus 2 यहां पे गया, so क्रॉस कर दिया, 3 इक्वल टू x minus 1 इंटू x minus 3, राइट। सो मेरे ख्याल से अब मेरे को क्वाड्रेटिक बना लेनी चाहिए टू गेट द आंसर। यहां पे 3 की बजाय मैं उल्टा लिख देता हूं, सो दैट इज नो चेंज एट ऑल। मैंने 3 को इधर की बजाय इधर लिख दिया। सो लेट मी सॉल्व दिस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। सो यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 minus 3 is equal to 0. This goes off. So x square minus 4x is equal to 0. X common, x minus 4 is equal to 0. Either x is 0 or x minus 4 is 0. So x की वैल्यू मैं 4 भी ले सकता हूं। So x की वैल्यू या तो 0 होगी या x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 4। That's it. Moving on to question number 18. This is from again foreign paper 2016. ठीक है, find the positive values of k for which the quadratic equation this and this both have real roots. ऐसी वैल्यू निकालनी है k की दोनों के रियल रूट्स होने चाहिए, ठीक है। सो अलग अलग ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0, ठीक है। रियल रूट्स की बात करिए, रियल रूट्स, कूल, मतलब कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। मैं यहां पे बीच में लगा लेता हूं, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू ही चलेगा, ठीक है। सो b यहां पे क्या आया, k, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो k स्क्वायर माइनस 64, 128 तो 256 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर माइनस 256 is 16 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो k प्लस 16, k माइनस 16 greater than equal to 0. Either k plus 16 is greater than equal to 0 or k minus 16 is greater than equal to 0, ठीक है। सो मैंने यहां पे क्या किया, k is greater than equal to minus 16 और k is greater than equal to 16। अब मैं ट्राई करता हूं नंबर लाइन पे। सो नंबर लाइन मैं नेक्स्ट पेज पे ही बनाऊंगा बिकॉज इट हैज टू बी कंटिन्यूड। यहां पे देखो, k is greater than equal to minus 16 और k is greater than equal to 16, ठीक है। आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। दिस इज द नंबर लाइन, देखो 0
यहां पे 16 आया, यहां पे -16 आया, k की वैल्यू -16 से ज्यादा होगी और इक्वल टू है, मतलब कि मैं डॉट पूरा कवर्ड बनाऊंगा, इट्स नॉट एन ओपन डॉट, ठीक है। ग्रेटर देन 16 मींस यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो मैं यहां से क्या सोच के आंसर लिख सकता हूं, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16, क्योंकि दोनों के लिए सेटिस्फैक्शन एरिया तो सिर्फ यही वाला है ना, ये वाला पार्ट सेटिस्फैक्शन इज ओनली फॉर k इज ग्रेटर देन -16, मतलब k प्लस 16 इज ग्रेटर देन 0, इसके लिए सेटिस्फैक्शन है, दोनों के लिए सेटिस्फैक्शन इज द कॉमन पार्ट, तो मैंने यहां से उठाया, राइट। व्हाट अबाउट द सेकंड, quadratic x square minus 8x plus k is equal to 0, ठीक है। सो अब उसने फिर से बोला कि रूट्स वर रियल, तो रियल रूट्स की बात करी थी उसने, मतलब कि उसने किसकी बात करी थी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करी थी। अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस में आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करी थी उसने, राइट। सो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या है, -8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी बात करी थी। सो -8 का स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी बात हुई। सो क्या करना चाहिए मुझे यहां पे, अब मैं 64, तो मैं इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूं, दैट इज व्हाट आई कैन डू, और तो कुछ है नहीं मेरे पास। सो 4 कॉमन लिया, 16 माइनस के, 16 माइनस 4k नहीं, 16 माइनस k is greater than equal to 0. So 16 minus k is greater than equal to 0 because 4 is already greater than 0, तो उसका कुछ करना नहीं है। So 16 minus k is greater than equal to 0, तो 16 मैंने यहां रहने दिया, so यहां पे मैं k ले गया। So इसका मतलब क्या बना, k is less than 16, right? Less than equal to 16. This is the answer, ठीक है। So मैंने यहां पे लिखा 0, यहां पे लिखा 16, k की वैल्यू ये कॉमन पार्ट से लेके ये पीछे तक गई, कॉमन मींस ये 16 को इंक्लूड करना है, सो k इज लेस देन 16, ये बना इसका आंसर। अब बताओ, दोनों को यूज करना है, दिस एंड दिस, आंसर क्या होना चाहिए, ओनली वन, k at 16 both are getting satisfied, the first equation as well as the second equation, because ये 16 से कम होना चाहिए, ये 16 से ज्यादा होना चाहिए, तो only 16 is the final answer। अब ये देख लो आपका आंसर कैसे आया, k is equal to 16, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और होना चाहिए था। कुल, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली पेपर का क्वेश्चन है 2015 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं भाई, सीधी सी चीज है, रूट्स, इक्वल रूट्स मैं यहां लिख लेता हूं, इक्वल रूट्स कब होते हैं, व्हेन d इज इक्वल टू 0, राइट। सो पहले d इक्वल टू 0 से मैं p की वैल्यू निकालता हूं, फिर रूट्स निकाल लेंगे, ठीक है। सो d इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो हम सो b की वैल्यू यहां पे क्या आ गई, सबसे पहले मैं a की वैल्यू लिखूंगा p+1, b की वैल्यू लिखी मैंने -6 टाइम्स p+1, एंड c की वैल्यू लिखी मैंने यहां पे 3 इंटू p+9, ठीक है। सो b स्क्वायर दैट इज -6 टाइम्स p+1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आई p+1 और c की वैल्यू आई 3 इंटू p+9, ठीक है। सो -6 का स्क्वायर दैट इज 36, p+1 का स्क्वायर यहीं आ गया, -4 3 is 12, p+1 p+9, राइट, इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स, यहां पे इक्वल टू 0 तो चलना ही चल रहा है, राइट। सो अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे, 12 इंटू p+1 को कॉमन ले लो, इजीएस्ट पार्ट, ठीक है। 12 इंटू p+1 को कॉमन लिया, क्या बचा यहां पे, 12 3 is 36,
इंटू पी प्लस वन बच गया, माइनस 12 का 12 कॉमन ले लिया, पी प्लस वन भी ले लिया, तो यहां पे क्या बच गया, पी प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0. 12 इंटू पी प्लस वन, 3p plus 3 minus p minus 9 equal to 0. 12 into p plus 1, 3p minus p that is 2p, plus 3 minus 9 that is minus 6 is equal to 0. ठीक है, मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, यहां से 2 कॉमन आ गया तो यहां पे तो p प्लस 1 ही बचा, और यहां से 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, p minus 3. So 12 2s are 24 into p plus 1 p minus 3 is equal to 0. Either p plus 1 is 0 or p minus 3 is 0. दोनों में से एक 0 होना चाहिए. p की वैल्यू आ गई -1 और p की वैल्यू आ गई 3. ठीक है, मैंने p की दो वैल्यूज निकाल ली, पॉजिटिव वैल्यू भी और नेगेटिव वैल्यू भी. क्या दोनों की दोनों वैल्यूज ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, p कैन नॉट बी इक्वल टू -1, सो रिजेक्टेड. दिया हुआ था तो p की एक ही वैल्यू है, दैट इज 3. नाउ वी विल फॉर्मुलेट द इक्वेशन. यहां पे था मेरे पास p प्लस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 टाइम्स p प्लस 1 एक्स प्लस 3 टाइम्स p प्लस 1 p प्लस 9, यही आएगा p प्लस 9, यस, p प्लस 9 इक्वल टू 0. p की वैल्यू मैंने डाल दी है 3, सो 3 डाला, 3 प्लस 1 दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 6, 3 यहां पे डाला तो 4x यहां पे भी आ गया, प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9 दैट इज 12 इक्वल टू 0. नाउ व्हाट शुड वी डू, 4 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 6x और यहां से 4 कॉमन ले लिया तो प्लस 9 इक्वल टू 0. सो 4 x माइनस 3 का होल स्क्वायर है ये, नथिंग एल्स. 2ab की टर्म बन रही है यार, दिख तो रहा है. सो x माइनस 3 का बिकम 0, सो x की वैल्यू 3 एंड 3 दो बारी आएगी ना, बिकॉज इक्वल रूट्स है, राइट. दिस इज योर आंसर. इतना मुश्किल नहीं था, इसके अंदर स्टेप्स ही ज्यादा थे, दैट्स इट, राइट. क्वेश्चन नंबर 20. द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स इज 3 and the difference of their reciprocal is 3 by 28. Find the numbers, right? So let me do this. दो natural numbers लेने हैं. Number 1, natural number 1 is taken to be x and natural number 2 is taken to be y. और मैं यहां पे एक चीज कंसिडर करके चल रहा हूं, x is greater than y. This is case 1. Under this we are solving. So x minus y is 3. Difference of the two natural numbers is 3. And difference of their reciprocal. अब मुझे यहां से ये बताओ, x is greater than y. So 1 by x और 1 by y की जब मैं बात करूंगा तो कौन सा बड़ा होगा? Of course 1 by y would be greater than 1 by x. तो मैं यहां से लिख सकता हूं 1 by y minus 1 by x is equal to 3 by 28. Right? This is equation number 1 and this is equation number 2. इसकी सॉल्विंग करनी है बस, that's it. So क्या करें? मैं एक काम कर सकता हूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 यहां लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इतना बड़ा नहीं है ये, ठीक है. सो मैं एक काम कर सकता हूं, फ्रॉम 1 में मतलब कि x की वैल्यू में लिख सकता हूं y प्लस 3, ये तो लिख ही सकता हूं. सो यहां पे 1 बाय y माइनस 1 बाय x की जगह डाल देता हूं y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3 बाय 28. एलसीएम y इंटू y प्लस 3, ऊपर आ गया y प्लस 3 माइनस y विच इज इक्वल टू 3 बाय 28. So this goes off or cross multiply 3 into 28 which is equal to 3y, y plus 3.
सो 3 गोज ऑफ, मेरे पास क्या बच गया, 28 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3y. सो 28 को मैं उधर ले गया, दैट इज नथिंग बट y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 28 इज इक्वल टू 0. राइट, ये बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ दिस इज टू बी सॉल्व्ड. नेक्स्ट पेज पे y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 28 इज इक्वल टू 0. राइट, सो क्या करना चाहिए मुझे, two numbers जिनका sum is 3 and the two numbers जिनका product is minus 28. 7 4s are 28, so this is 7, this is 4, this is 7, this is 4. 28 चाहिए, वो भी नेगेटिव का, यहाँ पे माइनस लगेगा. y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 4y माइनस 28 is equal to 0. y is common, y plus 7 minus 4 is common, y plus 7 is equal to 0. y plus 7 and y minus 4 is equal to 0. Either y plus 7 is 0 or y minus 4 is equal to 0. y की वैल्यू क्या आई, -7 और y की वैल्यू क्या आई, 4. ठीक है, अब बताओ नेचुरल नंबर क्या -7 हो सकता है, नॉट एट ऑल. सो y is 4. फाइनली x minus y was given to be, क्या दिया हुआ था मेरे को, x minus y, that was 3. y की जगह 4 डाल दिया तो x is 7. ठीक है, ये आया नंबर 2 और ये आया नंबर 1. ठीक है, नेचुरल नंबर 2 एंड नेचुरल नंबर 1. सो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था अंडर द कंडीशन x is greater than y. What about case 2? y is greater than x. राइट, सो मैं लिखूंगा y माइनस एक्स इज 0. सो जब मैंने रेसिप्रोकेट करना है, सो मैं 1 बाय वाई एंड 1 बाय एक्स लिखूंगा. सो ये बड़ा हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल टू 3 बाय 28. अगर आप ध्यान से देखो, सो सॉरी, यहां पे 0 नहीं हो सकता, यहां पे दोनों का लाइक सब्ट्रैक्शन इज 3. सो मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा 3 प्लस एक्स एंड वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा. Exactly same equations बनेंगी, just x, y and x are replaced. ठीक है, सो आपके पास नंबर्स सेम ही बनेंगे 7 and 4. These are the two numbers, but case 2 भी करके आपको दिखाना पड़ेगा in your final answers. Cool. So ये हो गया आपका दिल्ली पेपर का 2014 का क्वेश्चन. Let's move on to question number 21. So, question number 21, Delhi 2013 का अगेन ये सेम क्वेश्चन, और ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी कितने बार फ्रॉम द एग्जाम्पलर बुक. आर डी शर्मा में भी दिया हुआ है, बोर्ड पेपर में आ जाता है. राइट, सो क्या करना चाहिए मुझे, ब्रिंग दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. 1 बाय 2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1 बाय 2x इज इक्वल टू 1 बाय 2a प्लस 1 बाय b. क्या करना चाहिए, एक ही चीज कर सकते हैं यार, वी कैन टेक द एलसीएम. 2x टाइम्स 2a प्लस b प्लस 2x. सो यहां पे क्या आ गया, 2x माइनस 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू, और यहां पे 2a टाइम्स b, सो यहां पे आ गया b प्लस 2a. राइट, सो मेरे ख्याल से अभी नीचे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं. आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बट हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x विच इज नथिंग बट, इसको मैं 2a प्लस b आगे करके लिख लेता हूं बाय 2ab, सीधा लिखा. राइट, सो 2x कैंसिल हो गया, माइनस कॉमन ले लिया मैंने 2a प्लस b बाय 2x 2a प्लस b प्लस 2x. अब कटिंग हो सकती है, बट मैं यहां पे कटिंग नहीं करूंगा. लेट मी क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन कट करते हैं. ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. माइनस यहीं रहेगा, 2a प्लस b यहीं रहेगा, नीचे से 2ab आ गया, यहां पे
2a प्लस बी है इनटू, और क्या आया मेरे पास 2x आया, और क्या आया मेरे पास 2a प्लस बी प्लस 2x। ठीक है, सो 2 गॉट कैंसल आउट, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी गॉट कैंसल आउट, मतलब कि मेरे पास यहां पे रह गया माइनस ए बी, दैट्स इट। और यहां पे x रह गया विच इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड इनसाइड, सो 2ax प्लस 2, नहीं 2 क्यों, bx ही रहेगा यहां पे सिर्फ, प्लस 2x स्क्वायर। So this goes on this side, यहाँ पे आया 0 which is equal to 2x square plus 2ax plus bx plus ab, right? So I'm going to use this to solve on the next page. So यहाँ पे आ गया मेरे पास 2x square plus 2ax plus bx plus ab is equal to 0. So 2x common, x plus a plus b common, x plus a which is equal to 0, x plus a into 2x plus b which is equal to 0. So either x plus a is equal to 0 or 2x plus b is equal to 0. So either x is equal to minus a or x is equal to minus b by 2. These are the two answers. ठीक है, नॉट अ डिफिकल्ट वन, बट स्ट्रेटेजिकली अगर करोगे इट बिकम्स वेरी स्मॉल, बट अगर हैफवर्ड चलोगे इट बिकम्स वेरी लेंदी एंड कटिंग नहीं होती ठीक से। सो यू कैन सी वी डिड इट, नॉट अ डिफिकल्ट वन, राइट? क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्व फॉर एक्स। अब ये क्वेश्चन है फ्रॉम बोर्ड पेपर 2014। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं एक ही काम करूंगा, पुट 7x plus 1 by 5x minus 3 is equal to a. That's it. ठीक है, तो यहां पे बनेगा 3a माइनस, अगर मैं इसको ठीक करके लिखूं 4 बाय, ये देखो 7x plus 1 by 5x minus 3 ठीक करके लिखा is equal to 11, तो यहां पे क्या आ गया 3a माइनस 4 by a is equal to 1। ठीक है, यहां पे एलसीएम लिया a, 3a square minus 4 is equal to a, right? So यहां क्या बना 3a square minus 4 is equal to 11a. This becomes 3a square minus 11a minus 4 equal to 0. Cool? अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करें इसको सॉल्व? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दो नंबर्स को ऐड किया, दिस बिकम्स माइनस 11, दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिया, दिस इज 4 3s are 12 minus 12, राइट? सो कौन से ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए? 12 and 1, 12 and 1, 12 and 1। अब मेरे को ये नेगेटिव चाहिए तो बड़े वाला नेगेटिव होगा ऑफ कोर्स, सो 3a square minus 12a plus a minus 4 is equal to 0. 3a is common, a minus 4 plus 1 is common, a minus 4 is equal to 0. So यहां क्या आ गया a minus 4 and 3a plus 1 is equal to 0. Either a minus 4 is 0 or 3a plus 1 is equal to 0. a की वैल्यू 4 हो सकती है और a की वैल्यू माइनस 1 बाय 3 हो सकती है। That's it, राइट? कितना सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। a की वैल्यू 4, a की वैल्यू माइनस 1 बाय 3। अब आधे बच्चे यहीं छोड़ देंगे क्वेश्चन को, भाई क्वेश्चन पूरा हुआ ही नहीं है, क्योंकि जब आपने सब्स्टिट्यूट किया तब भी तो करोगे उसका पार्ट, वो भूल गए, क्योंकि यहां पे देखते ही हाँ मेरा आंसर आया, छोड़ दो, लो हो गया गड़बड़, छोड़ दिया आपने, क्वेश्चन पूरा किया ही नहीं। ध्यान से गाइस, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। क्वेश्चन हो गया तो ओवर एक्साइट होकर काम खराब नहीं करना अपना, राइट? सो a इज इक्वल टू 4 हमें दिया हुआ था, सो लेट्स डू द सब्स्टिट्यूशन अगेन, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है।
7x plus 1, 5x minus 3 is equal to 4, right? Cross multiply. 7x plus 1 is equal to 4 into 5x minus 3. This is 7x plus 1. 4 5s are 20x minus 4 3s are 12. So ये इधर गया, this is 13, और ये इधर आ गया, this is 13x. x की वैल्यू 13 by 13, this is 1, x is 1. a की वैल्यू क्या आ सकती है? -1/3. ये भी तो आ सकती है, तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा 7x plus 1 by 5x minus 3 is equal to -1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 यहां पे मल्टीप्लाई हो गया 7x plus 1, और यहां पे आ गया -1 को मल्टीप्लाई किया 5x minus 3. So 7 3s are 21x plus 3, और यहां पे आ गया -5x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3. सो 5x इधर आ गया, ठीक है. सो 21 plus 5, that is 26x, which is equal to, यहां पे 3 गया, 3 minus 3, that is 0. x की वैल्यू क्या आ गई? 0. सी, x या तो 1 होगा या x क्या होगा? 0. Straight 1, right? Easy question from board paper 2014. Question number 23. Okay, this is from board paper 21-22. term 2 में ना पेपर अलग हुआ था, आपको पता ही है, ठीक है, कोविड ईयर था. In the picture given below, one can see rectangular in-ground swimming pool, ground के अंदर है, of course, installed by a family in their backyard. There is a concrete sidewalk around the pool with the width of x meters. The outside edges of the sidewalk measure 7 meters and 12 meters. The area of the pool is 36 square meters. Based on the information given above, form a quadratic equation in terms of x. Okay. Find the sidewalk. Okay, ये देखो, ये रही sidewalk, ये sidewalk है ना, दिख रही है ध्यान से. The width of the sidewalk around the swimming pool, this has to be found out. Cool. फिर से एक बारी रीड करेंगे क्योंकि मैं अब पिक्चर बनाऊंगा. इन ग्राउंड स्विमिंग पूल है, इतना पता चल गया. There is a concrete sidewalk around the swimming pool. So let me draw the swimming pool first. ये मैंने बनाया जी swimming pool. इसके साइड में एक साइडवॉक है जो आपको दिख रही है, थोड़ा एग्जैजरेटेड वर्जन सो दैट मैं यहां पे मार्किंग कर सकूं, ठीक है. ये वाला पूल एरिया है और ये मेरी साइडवॉक है. Cool. So width of the sidewalk is given to be x. Okay. So इस साइड भी x है, ये देखो, इस साइड भी x है. This is also x and this is also x. ठीक है. The outside edges of the sidewalk measure. Outside edges क्या measure करती हैं? 7 meters and 12 meters. Okay. So मैं width को ले लेता हूं, तो पूरे पूल की width को, that is 7 meters, और यहां पे मैं ले लेता हूं 12 meters. इसके हिसाब से इक्वेशन बनाऊंगा to solve this. ठीक है. The area of the pool, the inside pool, इसका एरिया कितना होगा? Cool. अब तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पूल की, ठीक है. पूल की बात कर रहे हैं. लेंथ ऑफ पूल कैसे आएगा? लेंथ ऑफ पूल, टोटल लेंथ इज 12, यहां पे भी x, यहां पे भी x, ये सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. 12 minus 2x, ये है width ऑफ साइडवॉक, देना पड़ेगा क्योंकि आपने डायग्राम बनाया. नाउ यू कैन राइट इट डायरेक्टली. width ऑफ साइडवॉक इज x. सो breadth ऑफ पूल, breadth ऑफ पूल कितना होगा? यहां पे चलते हैं. ये देखो 7 तो ऐसे है लेंथ, तो ये वाली width में से दोनों 2x सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे. 7 minus 2x, ठीक है. उसने कुछ कहा द एरिया ऑफ द पूल इज 36 स्क्वायर मीटर्स, मींस एरिया इज गिवन टू बी 36 मीटर स्क्वायर. सो मैं यहां पे लिख सकता हूं 12 minus 2x, एंड यहां पे लिख सकता हूं 7 minus 2x, which is equal to 36. Done. So 12 into 7, that is 84. 12 2s are 30.
12 2s are 24x. 7 7 is a 14 minus 14x. And minus into minus plus 2 2s are 4x square, which is equal to 36. ठीक है, सो मैं इसको ठीक करके लिख रहा हूं 4x स्क्वायर एंड माइनस यहां पे 8 यहां पे 3 38x प्लस 84 माइनस 36 इज इक्वल टू 0. राइट अवे. सो यहां पे मेरे पास फाइनली क्या बन गया 4x स्क्वायर प्लस 38x और वो मैंने माइनस कर दिया 84 माइनस 36 48. राइट, हाँ 48 ही बनेगा विच इज इक्वल टू 0. What can I do? 4 तो नहीं निकल रहा, 2 कॉमन निकल सकता है, so I can take 2 कॉमन आउट. क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस भाई 38 प्लस 38. यार ये माइनस था, माइनस ही होना चाहिए था, गलती कैसे हो गई? बी केयरफुल. माइनस 38x का 38 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 19x एंड प्लस 48 ही रहेगा. 48 का हाफ हो जाएगा यहां पे, दैट इज 24 इक्वल टू 0. राइट, सो 2 को मैंने उठाया नीचे ले गया, सो इट डजंट मैटर. सो मेरे पास इक्वेशन क्या बच गई 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 24 विच इज इक्वल टू 0. ठीक है, दो नंबर्स जिनका सम इज माइनस 19 एंड दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट इज 24 इंटू 2 दैट इज 48. कूल. नंबर सोचो, 2 से तो नहीं जाएगा 24, बट 3 से 16 से चला जाएगा. 3 and 16 can get you the answer. Both will be negative, of course. So, यहां पे लिख लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x और यहां पे आ गया माइनस 16x प्लस 24 विच इज इक्वल टू 0. कॉमन क्या आ रहा है x, यहां पे आ गया 2x माइनस 3, यहां पे कॉमन क्या आ रहा है 8. 2x minus 3 which is equal to 0. कॉमन क्या आ रहा है 2x minus 3 एंड यहां पे क्या बच गया x minus 8 which is equal to 0. Either 2x minus 3 is 0 or x minus 8 is 0. x equal to नहीं, x क्या कर रहा है यार, x minus 8 is 0. ठीक है, सो x की वैल्यू 3/2 हो सकती है और x की वैल्यू 8 हो सकती है. नाउ यू हैव टू चूज कि भाई x की वैल्यू क्या होगी. मैं सिंपल है भाई, मेरे को तो मतलब तो पूल की विड्थ से है. ठीक है, सो अगर मैंने लेंथ ऑफ पूल निकाला, यहां पे निकालते हैं लेंथ ऑफ पूल. क्या आएगा लेंथ ऑफ पूल, मेरे पास 12 माइनस 2 इंटू 3/2. परफेक्ट. 12 माइनस 3 that is going to be 9. राइट, यही आएगा 9. सो 9 हो गया मेरे पास 9 मीटर्स. बट अगर मैंने 8 लिया तो लेंथ ऑफ पूल क्या बनेगी? ठीक है, लेंथ ऑफ पूल क्या होगा 12 माइनस 2 इंटू 8, 12 माइनस 16. क्या ऐसा हो सकता है? एब्सोल्युटली नॉट. सो दिस हैज टू बी रिजेक्टेड. ये रिजेक्टेड दिखाना पड़ेगा तुम्हें. सो 3/2 ही आंसर है इसका. विड्थ आपके पास आ गई 3/2 एंड दिस इज एक्सेप्टेड विड्थ ऑफ साइडवॉक. कूल, गॉट इट. 3/2 or 1.5, whatever you like. Next question, that is from sample paper 2015-2016. ठीक है, बहुत पुराने सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, होना चाहिए. 3/8 of students, 3/8 of students of a class opted to visit an old age home. Wonderful. ठीक है, so old age home वो चले गए. 16 students opted to having a nature walk. Wonderful. Square root of total number of students in the class opted to tree plantation in a school. The number of students who visited the old age home is same as the number of students who went for the nature walk and did the tree plantation. Find the total number of students. This is to be found out. What values are inculcated in the students through such activities? So values, yeah, we have to do like
we have to give back to the society as well as back to the nature. These are the values that can be inculcated in the students. That is immaterial. Mathematics wale part pe chalte hain hum log. So let the number of students be x. ठीक है, 3/8 ऑफ स्टूडेंट्स. अब देखो 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स को. ठीक है, सो कुछ गए ओल्ड एज होम. ठीक है, 3/8 ऑफ स्टूडेंट्स, 3/8 x. राइट, 16 ऑप्टेड फॉर नेचर वॉक. यहां पे लिखना पड़ेगा नेचर वॉक. 16 गए. राइट, एंड कुछ गए ट्री प्लांटेशन के लिए. ठीक है, ट्री प्लांटेशन के लिए कितने गए मेरे पास? स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. ठीक है, अब मैं यहां पे इक्वेशन बनाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विजिटेड एन ओल्ड एज होम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विजिटेड ओल्ड एज होम 3x/8, ठीक है, इज same as the number of students who went for a nature walk and did the tree plantation drive. आपके पास ये इक्वेशन बनेगी. राइट, ये इक्वेशन बन गई. बट अगर आप इसमें देखो, यहां पे x है, यहां पे रूट x है. पहले तो आप 16 को इधर लेकर आओगे, फिर you will use the method called squaring. ठीक है, सो आई डोंट वॉन्ट यू टू यूज दिस मेथड. डोंट यूज इट. आप बेटर assumptions करो टू गेट easier way to solve these equations. बेटर assumption भी तो कर सकते हो. नेक्स्ट पेज पे देखो, we are going to use better assumption. Let the number of students ठीक है, let the number of students be x square. x square थे, कुछ गए ओल्ड एज होम. हाउ मेनी ऑफ देम? 3/8, तो मतलब कि 3/8 ऑफ x square. Some of them wanted to go for a nature walk. These were 16 in number. And some went for tree plantation drive. Some went for tree plantation drive, that is x. Right? So now equation कैसे बनेगी? 3/8 x square. फिर से, number of students who visited old age home is same as who went for nature walk plus tree plantation drive x. Right? So मैंने इसको क्या किया? 3/8 x square minus x minus 16 is equal to 0. 8 LCM लिया, 3x square minus 8x minus 16 into 8, that is 128 is equal to 0. ठीक है, सो ये 8 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम 0 itself. सो मेरे पास इक्वेशन क्या रहेगी? 3x square minus 8x minus 128 is equal to 0. Right? Now let's solve this equation. क्या बना मेरे पास? 3x square minus 8x minus 128 equal to 0. Add किया, the number should be minus 8, and product किया, the number should be 3 into 128, that is 384. वो भी negative का 384. So numbers are 24 and 16. Right? So मेरे पास यहां पे क्या आया? 3x square minus 24x, ठीक है, माइनस, एक मिनट, -24x लेना था ना मेरे को, क्योंकि यहां पे नंबर नेगेटिव होना चाहिए. तो -24 प्लस 16 -24, सॉरी मैंने वहां पे नहीं बताया. सो -24x प्लस 16x minus 128 equal to 0. 3 common, x common, x minus 3 8s are 24. 16 common,
x minus 8, which is equal to 0. So x minus 8 into 3x plus 16, which is equal to 0. Either x minus 8 is 0 or 3x plus 16 is equal to 0. Right? x की वैल्यू या तो 8 होगी और x की वैल्यू या तो -16/3 होगी. राइट? सो क्या x मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स -16/3 हो सकता है? यार पॉजिटिव तो बन ही जाएगा, वो चलो हो तो सकते ही है. तो 16 का आया 256/9. फ्रैक्शन में हो सकते हैं नंबर्स स्टूडेंट्स, नो, तो दिस हैज टू बी रिजेक्टेड. नेगेटिव से आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, आपको फ्रैक्शन से रिजेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो यहां पे x आया 8, सो x स्क्वायर इज 64. ये आया मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कूल. क्वेश्चन नंबर 25. अब ये है सैंपल पेपर का क्वेश्चन फ्रॉम 22-23. Sejal started a business where she sells earrings online. She made 12,000 in sales in her first month. Wonderful. In the second month, when she decreased the price of the product by 20-fold, sold 40 more items and increased the total sale by rupees 2,000. At what price did she sell the earrings in the second month? Cool. So, सबसे पहले sales की बात करते हैं हम लोग. Sales for the first month. How much it was? That was 12,000. So number of items. Number of items sold were X. Cost per item was given by Y. So यहाँ पे second month के लिए this was 14,000. Number of items sold मेरे पास बढ़ गई x plus 40 एंड कॉस्ट पर आइटम वो कम हो गया y minus 20. Cool. So let me solve this. इक्वेशन पहली वाली बनाएंगे, that is number of items sold into cost per item, that is x into y, that is given to be 12,000. Right? This is equation number 1. I'm going to use this. Next one is number of items sold. Now it was increase x plus 40. Cost per item y minus 20 is equal to कितना है? 14,000. ठीक है? I have to solve this to get the answer. इसको इक्वेशन नंबर 2 क्यों लिखूं? पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं. xy minus 20x plus 40y minus 800 is equal to 14,000. ठीक है? xy की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, that is 2,000. 12,000. So यहाँ पे आया minus 20x plus 40y minus 800 is equal to 14,000. Right? So minus 20x वैसे का वैसे ही रहेगा, 40y वैसे का वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे आ गया देखो 14,000 minus 12,000 plus 800. यहाँ पे तो 2,000 बना, ठीक है, और 800 ऐड हो गया. Minus 20x plus 40y is equal to 2,800. Right? So this is equation number 2. Cool. ये equation number 2, equation number 1 and equation number 2 का यूज करेंगे to get the answer. xy कितना दिया हुआ है मैंने? मेरे को 12,000 दिया हुआ है. ठीक है? एंड यहां पे minus 20x plus 40y किसके बराबर दिया हुआ है? 2,800. I can take minus 20 ही कॉमन ले लेता हूं. x minus 2y is equal to 2,800. So यहां आ गया x minus 2y is equal to 2,800 by minus 20. This goes off. This goes to 140. Right? So x minus 2y is equal to minus 140. Now use it. मेरे को चाहिए y. So x has to be eliminated. 12,000 by y. So x की जगह मैंने रख दिया 12,000 by y. Minus 2y
is equal to minus 140. Right? So y is taken to be common. LCM liya. Minus 2y square is equal to minus 140. Done. So cross multiply to get the answer. So 12,000 minus 2y square is equal to minus 140y. So this becomes 0. मैं इसको इधर ले गया. 2y square minus 140y माइनस है तो ये भी माइनस ही होगा. minus 12,000. राइट, इसको ठीक करके लिखो एंड 2 को कॉमन ले लो. y square minus 70y minus 6,000 is equal to 0. So यहां पे आ गया मेरे पास y square minus 70y minus 6,000 is equal to 0. दो नंबर्स को ऐड किया, दैट इज minus 70. दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, दैट इज minus 6,000. अब बोलो कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे? 12 5 60 होता है, 120 into 50. ठीक है, 6,000 बन गया. सो यहां पे भी 120 एंड 50. नेगेटिव कर दो इसको. दैट्स इट, यूल गेट द आंसर. y square minus 120y plus 50y minus 6,000 equal to 0. Y is taken out as common. Y minus 120 plus 50 is taken out as common. Y minus 120 is equal to 0. So either y minus 120 is 0 or y plus 50 is 0. ठीक है, y की वैल्यू आ गई 120 और y की वैल्यू आ गई minus 50. अब उसने बोला कैन यू सेल योर इयररिंग्स एट minus 50 rupees? Absolutely not. This has to be rejected. ठीक है, अब इसके अंदर उसने पूछा है at what price did she sell the earrings in the second month? Second month में cost of earrings, second month के लिए cost per earring क्या होगी? y minus 20, that is 100 rupees. That's it. This is your final answer. मेरे को कॉस्ट से मतलब था, नंबर ऑफ इयरिंग्स या उससे कोई भी चीज से कोई मतलब ही नहीं था, कुछ पूछा ही नहीं उसने मेरे से. बट अगर नंबर ऑफ इयरिंग्स उसने पूछ ली तो दे देना यार एक्स की वैल्यू. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, राइट? सो दिस concludes the discussion of practice session number 3 and वो भी practice part also. It's done. Have a great day, guys. Thank you.